اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری ہے اور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان اس وقت بجٹ تمام تر حمد و ثنا عزت و اقتدار کے حقیقی مالک اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ ان گنت درود و سلام سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حضور پیش کرتے ہیں۔ رب کریم کے فضل سے مالی سال 2026-27 کا بجٹ اس معزز زبان میں پیش کر رہا ہوں، جو پنجاب میں عوامی خدمت کی نئی تاریخ لکھنے والی میری ویژنری قائد اور ڈائنامک وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکومت کا تیسرا بجٹ ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کو ایک ایسے موقع پر پیش کر رہے ہیں جب قائد جناب محمد نواز شریف کی رہنمائی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی تاریخ ساز اور پرخلوص ثالثی کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ میں جناب اسپیکر آپ کو معزز ایوان کو اپنے قائد میاں محمد نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار اور خاص طور پر فخر پاکستان فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دانائی اور دلیری نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ پوری قوم کو مبارک ہو جس کی دعائیں رنگ لائیں اور عالمی معرکہ امن میں پاکستان فاتح بن کر ابھرا۔ اندرون اور بیرون ملک آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے، الحمدللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے مثال کامیابی پر یہ ضرور کہوں گا، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، پرواز ایسی دیکھی شہباز کے پروں میں، لرزا ہوا ہے تاری دشمن کے سب گھروں میں۔ ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، ایسی دلیری ہم نے دنیا کو ہے دکھائی، جاری ہیں اپنے نغمے سارے سخنوروں میں۔ جناب اسپیکر، اپنی قیادت کی ہمیشہ کی تابناک روایات پر چلتے ہوئے ہم آج اس ایوان میں صرف مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش نہیں کر رہے، بلکہ گزشتہ برس کی طرح وعدوں کی تکمیل کا حساب بھی دے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل ترین اور ناقابل اصلاح تصور ہونے والے مایوس کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دن رات محنت و دیانت سے قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالا ہے۔ دیوالیہ ہونے سے بچا کر وطن عزیز کو معاشی استحکام تک لانے کی اس تاریخی جدوجہد کے دوران تباہ کن سیلابوں، سیاسی انتشار، بھارت کی مسلط کردہ جنگ اور خطے میں جنگ سے پیدا ہونے والی عالمی معاشی بحران کے طوفانوں سے ٹکرا کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں جہاں دنیا کا امن داؤ پر لگ چکا تھا، وہیں مہنگائی کے عالمی زلزلے نے ہلا دی۔ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے بر وقت اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ
मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने माली नज़्म व ज़ब्त और कफ़ायत शारी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी सतून बनाया। सरकारी अखराजात में कमी की, बोर्ड मीटिंग फीस पर पाबंदी लगाई, ऑनलाइन इजलासों को फरोग देने के साथ तमाम गैर जरूरी अखराजात पर काबू पाने के इकदामात किए। वजीर आला, सूबाई वुज़रा, मुआवनीन खसूसी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने 3 माह की मुकम्मल तनख्वाह और अलाउंसेस, जबकि अराकीन असेंबली की 2 माह की तनख्वाहों में 25% कटौती की गई। %60 सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल रोक दिया गया। कौम की खातिर किए गए इन इकदामात में भरपूर तावन पर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 9 अरब 78 करोड़ रुपए के रिलीफ से 4 करोड़ 74 लाख अफराद मुस्तफीद हुए। अवाम को सस्ता पेट्रोल और डीजल की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को 25 अरब 87 करोड़ रुपए मुहैया किए। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि कौम का हक और हमारा फर्ज था। जनाब स्पीकर, साल 2025 के दौरान शदीद बारिशों और 3 दरियाओं में बैक वक्त आने वाले तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। हमारी कायद वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने खुद मैदान में निकलकर सैलाब मुतासरा बहनों भाइयों की इमदाद और बहाली के तारीख के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत की। ऑल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाते हुए अपनी टीम तमाम इंतजामिया के साथ 2 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में नुकसानात का तखमीना लगाने, इमदाद और नुकसानात की फराहमी और बहाली समेत तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। मुतासरा खानदानों को हर वक्त खुराक, साफ पानी, आर्जी रिहाइश और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी यकीनी बनाई। 30 लाख से ज्यादा जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। हुकूमत ने किसान के साथ दही मईशत को भी बड़े नुकसान से बचाया। तारीख के सबसे बड़े सैलाब बहाली प्रोग्राम 69 अरब 78 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि 21 लाख अफराद को 50 अरब रुपए की बराए रास्त माली मुआवनत फराहम की गई। लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब को महज एक आफत समझकर रिवायती अंदाज में डील नहीं किया, बल्कि इससे सबक सीखते हुए तवील उल मुद्दती मंसूबा बंदी का आगाज किया, जिसके तहत पीडीएमए को जदीद खतूत पर तहसील की सतह तक उसे वुसअत दी जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल मैपिंग की गई। आब पाशी और निकासी आब के पहलुओं का जदीद अंदाज से जायजा लिया गया। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को इलाकों की मुकम्मल मैपिंग की गई। आब पाशी और निकासी आब के पहलुओं का जदीद अंदाज से जायजा लिया गया। फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को तरजीह बनाया गया। जनाब स्पीकर, आज पंजाब के शहरी की दहलीज पर 40 अरब के रमजान निगहबान पैकेज की तरह दस्तक, ई-बिज़, ई-पे और ई-पैड्स जैसे इकदामात से सरकारी दफातर की खिदमत भी फराहम की जा चुकी है। दस्तक प्रोग्राम के तहत 29 लाख से ज्यादा शहरी मुस्तफीद हुए।
ई बिज़ के जरिए 320 सरकारी खिदमात को डिजिटाइज किया गया, जिससे 81,000 से जायद कारोबारी अफराद ने फायदा उठाया। और ई पे के तहत शहरी 88 किस्म के सरकारी टैक्स और फीस घर बैठे अदा कर सकता है। ई पैड्स के जरिए पूरे पंजाब में सरकारी खरीदारियां शफाफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आज पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर तबका तरक्की के सफर में शरीक है। जनाब स्पीकर, इन चैलेंजेस का जिक्र करना भी जरूरी है जिनमें माली साल 2026-27 का बजट तैयार हुआ। विफाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए पंजाब ने बड़ा हिस्सा डालकर बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किया है। अगले माली साल के दौरान कौमी सतह पर माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाज़ों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने जराए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतजामी से 2-4 सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया। महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से जायद खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतजामी ढांचे की इस्लाह की गई। अवामी खिदमत की बेहतरी इन इक़दामात की कुछ तफसील पेशे खिदमत है। पंजाब के हर शहर और गांव को कूड़ा करकट से पाक करने के लिए सुथरा पंजाब अथॉरिटी और एजेंसीज, जबकि जिला की सतह पर पानी की फराहमी और निकासी आब के लिए वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज बनाई गई। पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और 11 नई एजेंसीज भी कायम की गई हैं। हुकूमती शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के फरोग के लिए ऑफिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कायम किया जा चुका है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज खुद मुख्तार इदारों और अटैच डिपार्टमेंट की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इनहेंसिंग डिलीवरी एंड गवर्नमेंट एफिशिएंसी विंग भी बन चुका है। सरकारी इदारों को एडवाइजरी खिदमात मुहैया करने के लिए पंजाब फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस की बुनियाद रखी गई है। सरकारी मुलाजमों और हुकूमत के सेहत सहूलत प्रोग्राम की इंश्योरेंस के लिए
पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का क़याम और सूबाई असासा जात, इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के मंसूबों की इंश्योरेंस के लिए पंजाब जनरल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दी गई है। निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाने के लिए पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और इंतज़ामी कारकर्दगी की निगरानी के लिए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम को मज़ीद मजबूत बनाया गया है। माहीगीरी, श्रिम्प फार्मिंग और आबी हयात की पैदावार बढ़ाकर पंजाब की मईशत को तरक्की देने के लिए एक्वा कल्चर एंड फिशरीज डिपार्टमेंट, डिजिटल इकॉनमी से फ़ायदा उठाने के लिए IT एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट और हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट जैसे महकमों का क़याम अमल में लाया गया है। वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट कायम किया गया। पंजाब में शहरी मनसूबाबंदी, ज़मीन के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी की बुनियाद रखी गई। कुदरती आफात से बेहतर अंदाज में निपटने के लिए PDMA की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात में इजाफे और टैक्स रेट बढ़ाने के लिए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 14 अजला से पूरे पंजाब तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स कवानीन में इस्लाह के अलावा अफरादी कुव्वत में इजाफा भी किया गया है। ये सब इक़दाम पंजाब की मिसाली तरक्की, खुशहाली और अच्छी हुक्मरानी के सफ़र के संगे मील हैं। जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात में माली साल 2026-27 की बजट साजिश में मुश्किलात के बावजूद वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने समाजी शोबे और अवाम की मदद के लिए मंसूबों पर कोई समझौता नहीं किया। हुकूमत ने फैसला किया अवाम पर बोझ डाले बगैर तरक्की के रास्ते तलाश किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, इन हालात में हुकूमत पंजाब ने माली इस्तेहकाम और स्मार्ट गवर्नेंस के जरिए जामे इस्लाहात मुतारिफ करवाई। कैश मैनेजमेंट फंड को 800 अरब से बढ़ाकर माली साल 2026-27 में 1200 अरब कर दिया गया, जिससे सूबे को इजाफी मुनाफा हासिल करने में मदद मिलेगी। माली साल 2025-26 में पंजाब के गंदम के कर्जे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 760 अरब रुपए का डोमेस्टिक डेट वापस किया गया। बर वक्त इस्लाही इक़दाम न किए जाते तो ये कर्ज आज 1 खरब रुपए से भी तजावज़ कर चुका होता। टैक्स के निज़ाम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामी इस्लाहात भी मुतारिफ करवाई गई हैं। माली साल 2026-27 के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट लाजमी करार दी गई है। पंजाब के लाइसेंस याफ्ता मोटर व्हीकल डीलर्स को विद होल्डिंग एजेंट्स करार दिया गया है, ताकि इनसे खरीदी गई किसी भी गाड़ी को सिर्फ पंजाब में ही रजिस्टर किया जा सके और इससे मुतालिक तमाम महसूलात बराह रास्त हुकूमत को जमा हो सके। इसी तरह बैंकों को कलेक्टिंग एजेंट्स मुकर्रर करके डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए की गई अदायगियों से वसूल शुदा सूबाई टैक्सेस की कटौती को मुमकिन बनाया गया है, ताकि टैक्स की वसूली फौरी और शफाफ हो सके। इन इक़दामात से न सिर्फ फिस्कल डिसिप्लिन को यकीनी बनाया है जाएगा, बल्कि सूबाई महसूलात में इजाफे से अवाम की समाजी तरक्की और फलाही के अहम मंसूबों के लिए मज़ीद वसाइल मुहैया होंगे।
जनाब स्पीकर, अवाम को बोझ से बचाने के लिए वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टी टैक्स के लेट पेमेंट सरचार्ज माहाना की बजाय सेमाई बुनियादों पर वसूल करने का फैसला किया है। प्रॉपर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम के तहत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए 5% रियायत फराहम की जा रही है। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स की छूट 95 से बढ़ाकर 99% की जा रही है। ज़राई टैक्स के निज़ाम में शफाफियत और सहूलत की खातिर फिक्स टैक्स स्ट्रक्चर के तहत जरूरी इस्लाहात मुतारिफ करवाई जा रही हैं। कॉटन फी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है, जिससे किसानों और टेक्सटाइल सेक्टर को बराह रास्त फायदा मिलेगा। हमने सूबे के मुआशी मुश्किलात पर अवाम की मुश्किलात को तरजीह दी है और देते रहेंगे। जनाब स्पीकर, तकरीबन 13 करोड़ आबादी के साथ मुल्क के सबसे बड़ा सूबा पंजाब का कौमी जीडीपी में 55.7% हिस्सा है। हमारी मुलाजमत याफ्ता अफरादी कुव्वत 3 करोड़ 58 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और सबसे अहम पंजाब की फी कस आमदनी $1904 है, जो गुज़िश्ता 3 साल के मुकाबले में 47% ज्यादा है। क्योंकि हम दावे नहीं करते बल्कि डिलीवर करते हैं। हुकूमत ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के लिए एक कसीरुल जहद और जामे मुआशी मंसूबा इस तनाज़ुर में तरतीब दिया है, जिसका नाम है पंजाब इनोवेशन फॉर वैल्यू अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, पिवट है। ये इदारा महज मंसूबों का मजमुआ नहीं, बल्कि पंजाब की मईशत को कम से हाई वैल्यू बनाने, मुकामी मंडियों से आलमी मंडियों तक रसाई और सरकारी सरमायाकारी से निजी शोबे की क़यादत में तरक्की की जानिब मुंतकली का एक जामे रोड मैप है। जनाब स्पीकर, 3 साला मुआशी तब्दीली का यह मंसूबा तकरीबन 1995 अरब रुपए की मजबूरी सरमायाकारी पर मुश्तमिल है, जिसमें 1090 अरब रुपए सरकारी सरमायाकारी जबकि 905 अरब रुपए से जायद की रकम प्राइवेट सेक्टर की शराकत से हासिल होगी। इस मंसूबे के तहत अगले 3 माली साल में सनत के शोबे में तकरीबन 1188 अरब रुपए, ज़राअत में तकरीबन 586 अरब रुपए, लाइव स्टॉक में 230 अरब रुपए, सियाहत में 642 अरब रुपए, एक्वा फार्मिंग में 190 अरब रुपए, महारतें सिखाने के लिए 186 अरब रुपए और टेक्नोलॉजी में 64 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। इस प्रोग्राम के नतीजे में 6 अरब 80 करोड़ डॉलर इजाफी बरामदात, 1,62,000 नई मुलाजमतें और 8,50,000 से जायद हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा होने की तवक्को है। हमारी हुकूमत, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत यकीन रखती है पायदार मुआशी तरक्की के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी, महारतों और तख्लीकी सलाहियतों का फरोग लाजिम है। हुकूमत बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतकारी के अलावा पॉलिसी, मुआवनत और रिस्क शेयरिंग फराहम करेगी, जबकि निजी शोबा
सरमाया कारी ऑपरेशन और जिद्दत के जरिए तरक्की के सफर में शरीक होगा। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की रीस्ट्रक्चरिंग और पीपीपी के शोबे में इस्लाहात के बाद जो मंसूबे पेश किए गए, इनमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ से इंतहाई मुस्बत रद्द अमल आया है, जो कि हुकूमत की जामे हिकमत अमली का नतीजा है। जनाब स्पीकर, गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार और पंजाब को कारोबार दोस्त सूबा बनाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड गेटवे ऑफ पंजाब का इदारा कायम किया गया है। पंजाब के सरकारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनत के फ़रोग के लिए लैंड लीज पॉलिसी लाए हैं ताकि सनतकार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो। अल्लाह ताला के फजल करम से पिवट और गिग पी जैसे इक़दामात पंजाब की मईशत को एक नई सिमत देंगे। ये रोज़गार, सरमायाकारी, बरामदात, हुनरमंदी और कारोबारी मौके पर मबनी जामे मुआशी तब्दीली का एजेंडा है। जनाब स्पीकर, अब मैं माली साल 2026-27 के बजट की अहम खसूसियात और हुकूमती तरजीहात मुअज़्ज़ज़ अरकान के सामने पेश करना चाहता हूँ। बजट तजावीज़ के लिए पंजाब की तारीख में पहली बार प्री बजट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें एकेडमिया, सनत और तिजारत के नुमाइंदगान और दीगर तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जनाब स्पीकर, माली साल 2026-27 के लिए मजमूई बजट का हुजम 5,903 अरब 46 करोड़ रुपए तजवीज़ किया जा रहा है, जो कि रवां माली साल के मुकाबले में 10.7% ज़्यादा है। जारी अखराजात का तखमीना 1962 अरब 93 करोड़ रुपए, जो कि रवां माली साल के मुकाबले में 3.1% कम है, जिसकी अहम वजह हुकूमत की किफ़ायतशारी है। अगले माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है, जिससे तनख्वाहों का खर्चा सिर्फ 1.4% बढ़कर 638 अरब 93 करोड़ होगा, जो कि हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी का नतीजा है। अगले माली साल में रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 3.5% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है, जिससे सूबे के पेंशन अखराजात 500 अरब 12 करोड़ होंगे। अवाम को ग्रास रूट लेवल पर खिदमात फराहम करने की गर्ज से PFC अवार्ड के तहत बल्दियाती इदारों के लिए 5.2% इजाफे के साथ 803 अरब 88 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की जा रही है। सर्विस डिलीवरी एक्सपेंडिचर 783 अरब 62 करोड़ रुपए होगा, जिसमें 578 अरब 62 करोड़ रुपए इदारों के रोज़मर्रा के अखराजात का है, जो कि हुकूमत के मौसर इक़दामात के सबब पिछले माली साल की निस्बत 5.1% कम है। इसी तरह करंट कैपिटल अखराजात की मद में 679 अरब 1 करोड़ रुपए भी आइंदा माली साल के बजट का हिस्सा बनाने की तजवीज़ पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मजबूत माली नज़्म व ज़ब्त, मौसर मनसूबाबंदी और अवाम दोस्त पॉलिसियों के ज़रिए तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया। माली साल 2025-26 बजट में मुतारिफ कराए गए नुमाया अवामी फलाई मनसूबे इस विजन की अमली ताबीर हैं। ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि 1150 अरब रुपए की लागत से
2025-26 کے ترقیاتی بجٹ کے تحت 2638 منصوبے پایا تکمیل تک پہنچے، جو کہ مالی سال 2024-25 کے ترقیاتی اخراجات سے 16% زیادہ ہے۔ مجھے یہ بات ایوان کے سامنے رکھتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ صوبائی محصولات میں خاطر خواہ اضافہ، وسائل کے مؤثر استعمال اور ایکسپینڈیچر ریشنلائزیشن کی پالیسی کے باعث ترقیاتی بجٹ کے لیے 752 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر صوبائی محصولات کی بات کی جائے تو وفاقی حکومت کی جانب سے NFC ایوارڈ کے تحت پنجاب کے لیے 4390 ارب 94 کروڑ روپے کی منتقلی کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جو کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت 8.1% زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے پروونسز اون ریونیو میں اضافے کی حکمت عملی اختیار کی گئی ہے۔ اسی خاطر میں اسی تناظر میں اگلے مالی سال کے لیے 1209 ارب 86 کروڑ روپے کی صوبائی آمدن کے حصول کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں پنجاب ریونیو اتھارٹی 528 ارب 50 کروڑ روپے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو کہ مالی سال 2025-26 کے مقابلے میں 55.4% زائد ہے۔ بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس وصولی کا ہدف 86 ارب 19 کروڑ روپے مقرر کیا جا رہا ہے۔ اگلے مالی سال کے لیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو 124 ارب روپے کا ہدف دیا گیا ہے، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 77% کا نمایاں اضافہ ہے۔ اسی طرح صوبائی نان ٹیکس محصولات میں کا تخمینہ 461 ارب 17 کروڑ روپے لگایا گیا ہے، جو کہ 2025-26 کی نسبت 52% زیادہ ہے۔ ان اہداف کے ذریعے صوبے کی مالی خود کفالت کو مزید مضبوط بنانے اور ترقیاتی ترجیحات کے لیے وسائل کی دستیابی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہے کہ صوبائی محصولات میں خاطر خواہ اضافہ کیے بغیر ترجیحی شعبہ جات اور عوامی فلاح کے منصوبوں پر سرمایہ کاری ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں محکمہ خزانہ اور دیگر صوبائی محکمہ جات کی انتھک کوششوں کے بعد مالی سال 2025-26 کے آخر تک صوبائی محصولات کا ہدف 99% حاصل کیا جائے گا۔ مجموعی طور پر ٹیکس اور نان ٹیکس وسائل سے 828 ارب کے ہدف میں سے 820 ارب 16 کروڑ روپے حاصل کر لیے جائیں گے۔ اس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی PRA کے ذریعے 340 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 370 ارب، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے 70 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 77 ارب 22 کروڑ روپے کی وصولی متوقع ہے۔ میں اس موقع پر یہ وضاحت دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت عوام پر ٹیکس کا بوجھ ڈالے بغیر ٹیکس بیس میں تاریخی اضافہ کر کے ٹیکس اور قوانین میں مثبت تبدیلیاں کر کے پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا اون سورس ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ میں اس شاندار کارکردگی پر محکمہ خزانہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو دل سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح مالی سال 2026-27 میں فورن فنڈڈ پروگرام لونز کی مد میں 49 ارب 84 کروڑ روپے اور فورن پروجیکٹس لونز کی مد میں 140 ارب
6 करोड़ रुपए की वसूलियां होंगी। वफाकी हुकूमत और IMF के साथ तयशुदा मालियाती फ्रेमवर्क की पासदारी के लिए एस्टिमेटेड प्रोविंशियल सरप्लस की मद में 910 अरब रुपए भी इस बजट में शामिल किए गए हैं, जो कि हुकूमत पंजाब की कौमी सोच की अमली नज़ीर है। अब मैं इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने हमारे दौरे हुकूमत में हुए चंद अहम मंसूबे आपके गोश गुजार करूँगा। जनाब स्पीकर, तालीम के शोबे की तरक्की हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। तालीम के शोबे में माली साल 2026-27 के लिए 750 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसमें तरक्याती मद में 63 अरब 30 करोड़ और गैर तरक्याती मद में 686 अरब 80 करोड़ रुपए शामिल हैं। माली साल 2026-27 में शोबा तालीम के लिए मुख्तस रकम मजमूई बजट का 15% से ज़ायद है। इस बजट के ज़रिए तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, जदीद महारतों के फ़रोग़, डिजिटल सहूलियात की फराहमी और मियारी तालीम तक रसाई को मज़ीद वसअत दी जाएगी। CM पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम के तहत 1,10,000 जदीद लैपटॉप्स की फराहमी के लिए 27 अरब रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया गया, जिसके तहत माली साल 2025-26 में 42,000 लैपटॉप्स तकसीम किए जा चुके हैं। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए, जिससे होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 15 अरब रुपए रखे गए, जिससे 1,08,000 तलबा मुस्तफीद हुए। स्कूल मील्स प्रोग्राम के तहत पंजाब के 13 अजला में 7 अरब रुपए की लागत से 11,20,000 तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर दूध फराहम किया जा रहा है। ये मंसूबा इस हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए शुरू किया गया कि सूबे में 44% बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार थे। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 4 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इसी तरह पीमा के तहत स्कूलों में एडिशनल क्लासरूम्स, मिसिंग फैसिलिटीज़, डेंजरस बिल्डिंग्स की बहाली के लिए 40 अरब रुपए से प्रोग्राम का माली साल 2025-26 में आगाज़ किया गया। पंजाब भर के तमाम स्कूलों और इनमें मिसिंग फैसिलिटीज़ की जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मैपिंग की जा रही है। 67 करोड़ रुपए की लागत से लाहौर में अपनी नौइयत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल बनाया गया है। मजीद बड़ा आइंदा माली साल में 4 अरब 50 करोड़ की लागत से पंजाब की हर डिवीजन में ऑटिज्म स्कूल बनाए जाएंगे। इस मकसद के लिए अगले माली साल में 1 अरब 90 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। इसी तसलसल में आइंदा माली साल में कॉलेजेस में 244 IT लैब्स के क़याम के लिए 6 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा शुरू किया जा रहा है, जिससे 4,07,000 से जायद 4,74,000 से जायद तलबा मुस्तफीद होंगे। मजीद बरा मरियम नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्टेम लेबॉर्ट्रीज प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 40 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं, जिसकी फराहमी से लाखों बच्चों को मियारी तालीम मुयस्सर होगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और पीमा के तहत प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से मियारी तालीम की
प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल जारी है। माली साल 2025-26 में इस प्रोग्राम पर 50 अरब रुपए सर्व किए गए हैं, जिसके नतीजे में 38 लाख बच्चों को मियारी तालीमी मौके मैसर आएंगे। जनाब स्पीकर, सेहत के शोबे में माली साल 2026-27 में 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि गैर तरक्याती अखराजात की मद में 424 अरब 32 करोड़ और तरक्याती अखराजात की मद में 76 अरब 30 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल है। माली साल 2026-27 में शोबा सेहत के लिए मुख्तस रकम मजमूई बजट का 10% से जायद है। रवां साल के दौरान जदीद हस्पतालों, कार्डियोलॉजी और कैंसर के इलाज के मराकज़, बुनियादी मराकज़, सेहत की अपग्रेडेशन, एमरजेंसी व डायलिसिस की सहूलियात, आज़ा की पेवंदकारी, ज़हनी सेहत की खिदमात और आवाम को मुफ्त और मियारी इलाज की फराहमी के मुतअद्दिद इक़दामात कामयाबी से मुकम्मल किए गए। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च के लिए 75 अरब रुपए की लागत से तामीर जारी है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बरां रवां माली साल में मजमूई तौर पर 28 अरब 94 करोड़ की लागत से जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर और नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा की तामीर और जदीद तिब्बी आलात की फराहमी के इक़दामात किए गए हैं। इस तरह 2 अरब 45 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ लाहौर के पुराने ब्लॉक्स की बहाली और अपग्रेडेशन का आगाज किया गया है। 5 अरब रुपए की लागत से निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के इमरजेंसी और आउटडोर ब्लॉक्स की अपग्रेडेशन पर अमल दरामद किया गया है। एक और अहम कदम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का है, जिस पर अमल दरामद 21 अरब रुपए की लागत से माली साल 2025-26 में किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 2508 बुनियादी मराकज़ सेहत BHUs और 115 दही मराकज़ सेहत RHCs को आउटसोर्स किया गया है, ताकि अवाम को मियारी और बरवक्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। देहात की सतह पर तिब्बी सहूलियात के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स और 60,000 से ज़ायद लेडी हेल्थ वर्कर्स की भर्ती की गई। इन तमाम इक़दामात पर 12 अरब 58 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। इसके अलावा क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे पर रवां माली साल में 3 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिससे 3 करोड़ 7 लाख से ज़ायद मरीजों को फायदा पहुंचा, जबकि आइंदा माली साल में 3 अरब 85 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। पंजाब में इस वक्त 2 एयर एम्बुलेंसेज भी चलाई जा रही हैं, जिनसे अब तक 270 मरीज मुस्तफीद हो चुके हैं। मजीद बरां 8 अरब 66 करोड़ रुपए खर्च करके CM इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस प्रोग्राम और 3 अरब 64 करोड़ रुपए की लागत से CM इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम जारी है। इन मंसूबों से मजमूई तौर पर 14 लाख से ज़ायद मरीज मुस्तफिद हुए हैं और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत 3 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से 13,000 से ज़ायद बच्चों की सर्जरी की गई है। इसके अलावा माली साल 2025-26 में 1 अरब
5 करोड़ रुपए सर्व करके डायबिटीज़ के मरीजों को इंसुलिन और दीगर ज़रूरी अद्वियात की बिला तात्तुल फराहमी को भी यकीनी बनाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत ज़ियाबीतस के मरीज बच्चों को भी इंसुलिन फराहम की जा रही है। इसी तसलसल में 9 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से शुमाली व वस्ती पंजाब में 434 बुनियादी मराकज़ सेहत BHUs की बहाली और अपग्रेडेशन के इक़दामात किए गए हैं ताकि अवाम को उनकी दहलीज पर मियारी और जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। आइंदा माली साल में 169 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के क़याम का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रन हस्पताल, ऑर्थोपीडिक और सर्जिकल यूनिट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, प्लास्टिक और बर्न केयर यूनिट और दीगर खसूसी इदारे शामिल हैं। मज़ीद बरां कार्डियक सर्जरी यूनिट 15 कार्डियक सर्जरी यूनिट के क़याम के लिए 9 अरब 30 करोड़ रुपए 29 टीचिंग हस्पतालों में MRI मशीनों की तनसीब के लिए 8 अरब 31 करोड़ और जदीद तिब्बी आलात और तशखीसी सहूलियात की फराहमी जिनमें कैथ लैब, CT स्कैन, न्यूरो कैथ लैब्स के क़याम के दीगर मंसूबे इस बजट का हिस्सा हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्ट्रोक इनिशिएटिव के तहत न्यूरो कैथ लैब्स का मंसूबा पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा मुतारिफ करवाया जा रहा है। इस मंसूबे के लिए अगले माली साल में 1 अरब 75 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब भर में इमरजेंसी सर्विसेज की तोसी और इस्तेदाद में इजाफे के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए की भी तजवीज़ रखी गई है। सेहत की मियारी और बरवक्त सहूलियात की फराहमी के लिए इस बजट में 15 अरब 21 करोड़ रुपए की लागत से DG खान कैंसर हॉस्पिटल भी तजवीज़ किया गया है। इसी तसलसल में 23 अरब 37 करोड़ रुपए की लागत से बहावलपुर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल तामीर करने की तजवीज़ भी इस बजट का हिस्सा है, ताकि जनूबी पंजाब के बच्चों को फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया हो सके। जनाब स्पीकर, इक्तसादी तब्दीली और गुर्बत के खात्मे का अमल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पायदार रोज़गार, बढ़ती हुई सरमायाकारी, बरामदात में इजाफा और मुआशी मौके की फराहमी ही अवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने और गुर्बत में कमी लाने का मुयस्सर ज़रिया है। इसी विजन के तहत रवां माली साल में सनती शोबे में दर्ज झैल इक़दामात मुतारिफ करवाए गए हैं। इस रवां माली साल में कारोबारी सरगर्मियों, सरमायाकारी और रोज़गार के फ़रोग के लिए 47 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से CM पंजाब आसान कारोबार कार्ड और CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और CM पंजाब आसान कारोबार एक्सपोर्ट फाइनेंस के मंसूबों पर अमल दरामद किया गया, जिसके तहत 1,10,000 से ज़ायद कारोबारी अफराद को 125 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए हैं। इसी तरह 193 अरब रुपए की लागत से सनती तरक्की एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन फाइनेंसिंग के तहत 463 सनती मंसूबों को रियायती माली मुआवनत फराहम की जाएगी, जिससे 300 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक और 29,400 बराह रास्त मुलाजमतें पैदा होंगी और 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की इजाफी बरामदी सलाहियत हासिल होगी। इस प्रोग्राम के तहत 5 अरब रुपए की मालियत तक दरमियाने और बड़े दर्जे के कारोबारी शोबों को सब्सिडाइज लोन मुहैया किया जाएगा, जिसकी वापसी की मियाद 10 साल होगी, जबकि 70 करोड़ रुपए की लागत से ई-बिज़ और ई-कॉमर्स रेडीनेस के ज़रिए डिजिटल तिजारत के फ़रोग, ई-कॉमर्स हब्स के क़याम
اور کاروباری اداروں کو عالمی منڈیوں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس منصوبے کے نتیجے میں اب تک 6 ارب 90 کروڑ کی وصولیاں ڈیجیٹل ذرائع سے مکمل ہوئی ہیں۔ اس کے تحت ای کامرس کے 4 مراکز 2000 کاروباری اداروں کو آن لائن تجارت اور برآمدات کے مواقع فراہم کریں گے۔ اس اقدام سے سالانہ 2 کروڑ 45 لاکھ امریکی ڈالر مالیت کی برآمدی سرگرمیوں میں اضافہ متوقع ہے۔ باغبانی اور فلوریکلچر کے شعبے کی ترقی کے لیے 30 کروڑ روپے کی مالی معاونت سٹیپ پروگرام کے ذریعے فراہم کی جائے گی، جس سے کولڈ چین اور رسد اور ترسیل کے نظام کو فروغ دیا جائے گا۔ 100 سے زائد فلوریکلچر اداروں کو فائدہ پہنچے گا۔ قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں 4 ارب روپے کی لاگت سے گارمنٹ سٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے ٹیکسٹائل اور صنعت کو جدید سہولیات میسر آئیں۔ 6 ارب روپے کی لاگت سے فیصل آباد میں علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کی تعمیر کا منصوبہ اگلے مالی سال میں شامل ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اکنامک ٹرانسفارمیشن آف پنجاب کے تحت آئندہ 3 سال میں صنعت پر مبنی معیشت کے فروغ کے لیے مجموعی طور پر 783 ارب 80 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس میں 403 ارب 80 کروڑ روپے کی سرکاری سرمایہ کاری شامل ہے، جبکہ 380 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہونے کی توقع ہے۔ یہ سرمایہ کاری روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے، آمدنی میں اضافے، برآمدات کے فروغ اور غربت میں کمی کے ذریعے پنجاب کی معیشت کو مزید مضبوط اور پائیدار بنیادوں پر استوار کرے گی۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں برآمدات میں اضافے اور ویلیو ایڈیشن کے فروغ کے لیے گارمنٹ سیکٹر میں 13 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے پلگ اینڈ پلے فیکٹری پارکس قائم کیے جائیں گے، جن سے سالانہ $300 ملین اضافی برآمدات، 20,000 نئی ملازمتیں اور 40 سے زائد نئے گارمنٹ یونٹس کے قیام کی راہ ہموار ہوگی۔ علاوہ ازیں فٹ ویئر اور لیدر سیکٹر میں 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ قصور اور کامن فیسلٹی سینٹر اور ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کی جائیں گی، جس سے 100 سے زائد ٹینریز بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کر سکیں گی اور $300 ملین تک اضافی برآمدی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اسی طرح فارماسیوٹیکل کے شعبے میں 2 ارب روپے کی لاگت سے بائیو ایکویلنس لیب قائم کی جائے گی۔ معیشت کے فروغ اور کاروباری سرگرمیوں کو مزید سہل، شفاف اور مسابقتی بنانے کے لیے حکومت متعدد اصلاحات متعارف کروا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاروبار دوست زیرو ٹائم ٹو سٹارٹ اپ پالیسی کے تحت یونیفائیڈ انسپیکشن رجیم نافذ کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 15 سے زائد مختلف اداروں کے معائنہ جاتی نظام کو 1 ونڈو سسٹم پر لایا جائے گا۔ اس اقدام سے کاروباری اداروں کے لیے قواعد و ضوابط کی تعمیل کی لاگت میں 40 سے 60% تک کمی آئے گی۔ کاروبار کرنے میں آسانی پیدا ہوگی اور برآمدی صنعت کو غیر ضروری رکاوٹوں سے نجات ملے گی۔ اسی طرح ایس سی زیز میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے لینڈ لیز پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے، جس کے تحت زمین کی لیز کی شرح 50,000 سے 2 لاکھ روپے فی ایکڑ ماہانہ مقرر کی جائے گی۔ ماحول دوست پیداوار، برآمدات میں اضافے اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں سرمایہ کاری کے لیے 40% تک رعایتیں دی جائیں گی۔ اسی پالیسی کے نتیجے میں تقریباً 1995 ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جو صنعتی ترقی، روزگار کے مواقع اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ کرے گی۔ سپورٹس گڈ سیکٹر کی ترقی کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے فیفا، ICC اور ITF معیار کی ٹیسٹنگ فیسلٹیز
اور سرٹیفکیشن پروگرام متعارف کروائے جائیں گے، جن سے 1000 سے زائد برآمدی ادارے مستفید ہوں گے اور $100 ملین اضافی برآمدات متوقع ہے۔ ہینڈ ٹولز اور کٹلری سیکٹر میں 4 ارب روپے کی لاگت سے آرٹس اینڈ کرافٹ ولیج ٹیکنالوجی کی اپگریڈیشن کے لیے مالی معاونت فراہم کی جائے گی، جس سے 2500 نئی ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ویلیو ایڈڈ مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ سیرامک سیکٹر میں 25 کروڑ روپے کی لاگت سے گجرات انسٹیٹیوٹ کو جدید بھٹیوں اور ٹیسٹنگ سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا، جبکہ فین سیکٹر میں 70 کروڑ روپے کی لاگت سے سمڑیال میٹیریل ٹیسٹنگ لیب قائم کی جائے گی، جس سے یورپی اور دیگر ریگولیٹڈ منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ صنعتی بنیادوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے انڈسٹریل اسٹیٹس ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت فیصل آباد، وہاڑی، رحیم یار خان اور بہاولپور میں صنعتی اسٹیٹس کی ترقی کی جائے گی، جس سے 1000 سے زائد نئی صنعتی اکائیاں، 80 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری اور 40,000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مزید برآں 20 ارب روپے کی لاگت سے کلسٹر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے برآمدی کلسٹرز میں مشینری بنیادی انفراسٹرکچر کی 100% مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ صنعتی شعبے کی پیداوار، ترقی، ماحولیاتی معیار کی پاسداری اور بین الاقوامی منڈیوں تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے آئندہ مالی سال میں 25 ارب روپے کی لاگت سے کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ پیکیج بھی متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اس اقدام کے تحت 4 صنعتی اسٹیٹس میں 70 MGD ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کی استعداد پیدا کی جائے گی۔ صوبے کے معدنی وسائل سے زیادہ معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے CM پنجاب ویلیو ایڈیشن فائنینسنگ فار پنک سالٹ پروگرام کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز ہے۔ اس اقدام کے تحت پنک سالٹ سے وابستہ 200 معدنی و صنعتی اداروں کو رعایتی مالی معاونت فراہم کی جائے گی۔ زراعت، لائف سٹاک اور آبی زراعت پنجاب کی معیشت، غذائی تحفظ اور دیہی روزگار اور برآمدات کے فروغ کے بنیادی ستون ہیں۔ جناب اسپیکر، ان شعبوں کی استعداد کار کو بروئے کار لانے اور انہیں معاشی ترقی کے محرک میں تبدیل کرنے کے لیے حکومت پنجاب نے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں 132 ارب 54 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جبکہ آئندہ آنے والے 3 سالوں میں حکومت کے اکنامک ٹرانسفارمیشن اقدامات کے تحت زرعی ویلیو ایڈیشن، لائف سٹاک ویلیو اسٹریم اور آبی زراعت کے شعبوں میں حکومتی سرمایہ کاری تقریباً 481 ارب روپے ہوگی، جس کے نتیجے میں نجی شعبے کی جانب سے 134 ارب روپے کی اضافی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ ان شعبوں میں مجموعی سرمایہ کاری کا حجم 615 روپے سے تجاوز کر جائے گا۔ اس سرمایہ کاری کے ذریعے پیداوار، ویلیو ایڈیشن، برآمدات، روزگار اور دیہی خوشحالی کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، کسانوں کی مالی معاونت کے لیے کسان کارڈ پروگرام ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ رواں مالی سال میں 9 ارب 86 کروڑ روپے کی لاگت سے 8,25,000 کسانوں کو 251 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے، جن کی ریکوری کا تناسب 99% ہے۔ اس پروگرام کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے
10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जिसके ज़रिए 10 लाख किसानों को खाद, बीज, ज़रूरी अद्वियात और दीगर ज़रूरी आलात की खरीदारी के लिए मुआवनत फराहम की जाएगी। मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में इस मकसद के लिए 350 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम करके एक तारीख रकम की है। पंजाब में ज़मीन से महरूम अफराद को आसान शराइत पर सरकारी ज़मीन लीज पर देने के लिए स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन मंजूर की हैं। इस प्रोग्राम के तहत 5 एकड़ तक ज़मीन मुस्तहिक़ अफराद को फराहम की जाएगी। मैं यहाँ इस बात का फ़ख्र से ऐलान करना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत ने के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि मौजूदा हुकूमत ने महज 2 बरसों में 60 अरब रुपए मुख्तस करके जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को नई रफ्तार दी है। ज़राई शोबे में इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए रवां माली साल में 2 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से इंटर्नशिप स्कीम फॉर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के तहत 1661 नौजवानों को अमली तरबियत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में 2 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से 3000 ज़राई ग्रेजुएट्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इसी तरह किसानों को एक ही छत तले जदीद ज़राई सहूलियात की फराहमी के लिए आइंदा माली साल में 1 अरब 82 करोड़ रुपए की लागत से मजीद 10 मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स कायम किए जाएंगे। पंजाब में इस नौइयत का मुनफरिद और इनकलाबी कदम पहली दफ़ा उठाया गया है। इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सरगोदा, खानेवाल, उकाड़ा और बक्कर में एग्रो प्रोसेसिंग पार्क्स के क़याम पर 60 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके ज़रिए अगले 3 सालों में 500 से ज़ायद नई सनतें कायम होंगी। 20 अरब रुपए से ज़ायद निजी सरमायाकारी आएगी और तकरीबन 20,000 बराह रास्त बिलवास्ता रोज़गार के मौके फराहम होंगे। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के फ़रोग के लिए 135 अरब रुपए के प्रोग्राम से ज़राई पैदावार में 120 अरब रुपए के इजाफी फ़वाइद हासिल होंगे। ज़राई मशीनरी की दरामदाद में 70% तक कमी आएगी और 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतवक्के है। वीट वैल्यू एनहांसमेंट की बेहतरी के लिए 20 अरब रुपए के मंसूबों के ज़रिए सालाना $289 मिलियन की इजाफी मुआशी कदर पैदा होगी। 2 लाख किसान मुस्तफ़ीद होंगे। किसानों की आमदन में 30 से 50% इजाफा होगा और फसल के बाद होने वाले नुकसानात में नुमाया कमी आएगी। अलावा अज़ीं आम, कीनू और आलू प्रोसेसिंग के मंसूबों पर 15 अरब रुपए की सरमायाकारी के नतीजे में 20,000 से ज़ायद रोज़गार के मौके पैदा होंगे। 48 अरब रुपए की निजी सरमायाकारी मुतहरिक होगी और $200 मिलियन की इजाफी बरामदात हासिल होंगी। मैंने कहा आपको थोड़ा सा मौका दे देता हूँ। कोई आवाज़ आपकी बिल्कुल बंद हो गई थी, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था तकरीर का। ज़रा आपका शोर होता है ना तो मुझे भी तकरीर का आपका शोर होता है तो मुझे भी मज़ा आता है तकरीर करने का। जनाब स्पीकर, 5 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से सीएम पंजाब हर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टू एनहांस लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम के जरिए जानवरों की नस्ल और पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के इकदाम किए गए। 2 अरब रुपए की लागत से 4,385 दही खवातीन को लाइव स्टॉक असासे फराहम किए गए।
ان اقدامات کے تسلسل میں آئندہ مالی سال کے لیے 4 ارب 44 کروڑ کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ فیز 2 کے تحت 3 لاکھ مویشی پال حضرات کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں گے۔ لائف سٹاک سپورٹ پروگرام کے تحت 3 ارب 12 کروڑ روپے کی لاگت سے 10,000 دیہی خواتین میں دودھ دینے والے جانور تقسیم کیے جائیں گے۔ مویشیوں کی صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ مالی سال میں 4 ارب 5 کروڑ روپے کی لاگت سے 146 ویٹرنری ہاسپٹلز کی بحالی اور 10 ارب 17 کروڑ روپے کی لاگت سے 482 موبائل ویٹرنری ڈسپنسریز کی تجویز بھی شامل ہے۔ جبکہ 1 ارب روپے سے 2,40,000 مویشی پال حضرات کو جدید طریقہ ہے پرورش اور کاروباری مہارتوں کی تربیت دینے کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ مویشیوں کی سب سے مہلک فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کے تدارک کے لیے 62 کروڑ روپے کی لاگت سے پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت بہاول نگر میں ایف ایم ڈی فری زون کے قیام پر عمل درآمد جاری ہے۔ 61 کروڑ روپے کی لاگت سے انٹرنشپ مہیا کی گئیں جس سے 1000 گریجویٹس مستفید ہوئے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے تحت لائیو میٹ پروگرام سے گوشت کی ویلیو ایڈیشن کے لیے 19 ارب 10 کروڑ روپے کی حکومتی معاونت سے 85 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری متحرک ہوگی۔ گوشت کی برآمدات میں 200% اضافہ، 15,000 سے زائد روزگار کے مواقع اور بعد از ذبح نقصانات میں 8 تا 12% کمی متوقع ہے۔ علاوہ ازیں لائیو ملک پروگرام کے تحت دودھ کی پیداوار اور پروسیسنگ کے فروغ کے لیے 25 ارب 90 کروڑ روپے کے پروگرام کے ذریعے برآمدات میں 3 گنا اضافہ، برآمدی بل میں $40 ملین کی کمی، کسانوں کی آمدن میں دوگنا اضافہ متوقع ہے۔ جناب اسپیکر، پنجاب ایکوا کلچر اینڈ فشریز محکمے کی ترقی کے لیے مجموعی طور پر 173 ارب کے جامع پروگرام پر عمل پیرا ہے، جس کے تحت 2 شرمپ اسٹیٹس، شاہ گڑھ شرمپ ریسرچ اینڈ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، 3 ایکوا کلچر مالز، شرمپ فارمنگ فیزیبلٹی، 4 ایکوا بزنس ہبز اور ہیچریز سمیت متعدد منصوبے جاری ہیں۔ جبکہ نئے اقدامات میں اکنامک ٹرانسفارمیشن ویژن کے تحت آبی زراعت کے فروغ کے لیے 80 ارب روپے کی سرکاری سرمایہ کاری سے 3 فش مارکیٹس، ایکوا بزنس ہبز اور شرمپ اسٹیٹس قائم کی جائیں گی، جس کے نتیجے میں 30 ارب روپے کی نجی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ سالانہ $235 ملین سے زائد مالیت کی پیداوار اور برآمدی آمدن حاصل ہوگی۔ یہ تمام اقدامات اس عمل کا مظہر ہیں۔ حکومت محدود وسائل کو ترقی، برآمدات، روزگار اور نجی سرمایہ کاری کے نئے مواقع میں تبدیل کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نیچر انکلیو گرین بلڈنگ، لاہور ماڈل فش مارکیٹ، مری ٹراؤٹ ہیچری کی اپ گریڈیشن کے منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا۔ ان منصوبوں کے ذریعے مچھلی اور جھینگے کی پیداوار، برآمدات، نجی سرمایہ کاری، ویلیو ایڈیشن، فوڈ سیکیورٹی، ایکوا ٹورزم، روزگار کے ہزاروں نئے مواقع پیدا ہوں گے، جس سے پنجاب کو جدید، پائیدار اور ایکسپورٹ پر مبنی ایکوا کلچر معیشت کا مرکز بنایا جا رہا ہے۔ ہماری حکومت نے
अफरादी कुव्वत की अहमियत को समझते हुए नौजवानों को फनी महारतें और दीगर सहूलियात मुहैया करने के लिए जो पहला कदम उठाया गया वो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की असर-ए-नौ तश्कील थी। इस शोबे से मुतालिक तमाम अथॉरिटीज और ऑटोनमस बॉडीज को इस महकमे में यकजा किया गया। इसके अलावा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में स्किल्स की मुकम्मल मैपिंग की गई ताकि मुयस्सर मनसूबाबंदी की जा सके। हमने मजमूई तौर पर 2 लाख से ज्यादा नौजवानों को महारत से आरास्ता करके रोजगार हासिल करने में मदद फराहम की है। माली साल 2025-26 में टेवटा की ज़ेरे निगरानी हॉस्पिटैलिटी लेबॉर्ट्रीज की तोसी, बैरून मुल्क रोजगारी के फरोग और नए फनी इदारों के क़याम के मंसूबे शामिल रहे। सीएम स्किल्स डेवलपमेंट मंसूबे के तहत 5165 अफराद को IT कोर्सेज की तरबियत फराहम की गई, जबकि तामीराती और हॉस्पिटैलिटी लैब्स की तोसी के मंसूबे से आइंदा साल मजीद 4450 अफराद मुस्तफीद होने की तवक्को है। इसी तरह ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मंसूबे के तहत 2000 हुनरमंद नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली साल 2025-26 के दौरान PVTC ने सालाना तरबियती तादाद को 60,000 नौजवानों से बढ़ाकर 75,000 नौजवानों तक पहुंचाया। 12 शोबों में 5,677 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड किया गया। 4,859 तरबियत याफ्तगान से मुख्तसर दुरानिये के कोर्स में दाखिला लिया। 100 से जायद सनतों के इश्तिराक से वर्क बेस्ड ट्रेनिंग के तहत 1600 से जायद तरबियत याफ्ता नौजवानों ने दाखिला लिया। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को जदीद और मार्केट की ज़रूरियात से हम आहंग फनी व पेशा वराना तरबियत फराहम करने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसके तहत अब तक 5,000 नौजवानों ने फायदा उठाया है। 1 अरब 44 करोड़ रुपए की लागत से CM स्किल्ड पंजाब प्रोग्राम के तहत नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार हासिल करने के मौके फराहम किए गए। इस मंसूबे से अब तक 2,200 अफराद फायदा उठा चुके हैं। स्किल्स फॉर ऑल इक़दामात के तहत खुसूसी अफराद, ख़वातीन और कमज़ोर तबकात के लिए जामे तरबियती प्रोग्राम पर अमल दरामद किया गया। परवाज़ कार्ड स्कीम फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट के तहत 45,000 नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के हसूल के लिए बिला सूद कर्जों की सहूलत 6 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से फराहम की जा रही है। इस इक़दाम के तहत 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के कर्जे फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले को मजीद मुयस्सर बनाने के लिए हुकूमत पंजाब ने 3 अरब 54 करोड़ रुपए की लागत से लैंग्वेज स्किल प्रोग्राम मुतारिफ करवाने जा रही है, जिसके तहत 30,000 नौजवानों को बैनुल अक़वामी रोज़गार की ज़रूरियात के मुताबिक ज़बानों की तरबियत फराहम की जाएगी। पंजाब की सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए पंजाब इंडस्ट्री क्लस्टर एकेडेमिया लिंकेजेस प्रोग्राम पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जा रहा है। इस इक़दाम के तहत 25,000 नौजवानों को अहम सनती शोबों के लिए तैयार किया जाएगा।
ڈیجیٹل اکانومی میں پنجاب کے نوجوانوں کو عالمی سطح پر مقابلے کے قابل بنانے کے لیے 1 ارب 46 کروڑ روپے کی لاگت سے ایڈوانس ٹیکنالوجی پروگرام 2 کے تحت 7,500 نوجوانوں کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ، سائبر سیکیورٹی، AI، ڈیٹا انالیسز اور دیگر ٹیکنالوجیز میں تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ BPO پروگرام کے تحت 10,000 نوجوانوں کو کلسٹر سروسز، بزنس پروسیسز، آؤٹ سورسنگ اور عالمی خدمات کے شعبے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ 1 ارب روپے کی لاگت سے خواتین کی معاشی خود مختاری اور ڈیجیٹل شمولیت کے فروغ کے لیے امپاورنگ رورل وومن بائی وے آف IT کے تحت 15,000 دیہی خواتین کو جدید ڈیجیٹل مہارتوں، آن لائن روزگار، ای کامرس اور فری لانسنگ کے مواقع سے منسلک کیا جائے گا۔ مستقبل کی گرین اکانومی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکلز فار ایگریکلچر اینڈ گرین انوائرمنٹ پروگرام 2 ارب 89 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت 20,000 نوجوانوں کو قابل تجدید توانائی، الیکٹرک وہیکلز، گرین انفراسٹرکچر، پانی کے مؤثر انتظام، کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اور دیگر ابھرتے ہوئے گرین شعبوں میں تربیت فراہم کی جائے گی۔ ترقی کے ثمرات کو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے امید اسکلز فار انکلوژن پروگرام بھی متعارف کروایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے 10,000 خصوصی افراد اور خواجہ سرا افراد کو مارکیٹ سے منسلک مہارتیں، روزگار، خود روزگاری اور مالی شمولیت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس پروگرام کی لاگت 1 ارب 58 کروڑ روپے ہے۔ اکنامک ٹرانسفارمیشن کی ویژن کے تحت حکومت اسکلنگ پنجاب پروگرام بھی متعارف کروا رہی ہے، جس کے تحت اسکلز فار ڈومیسٹک نیڈز کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے یورپین کوالیفیکیشن اور سینٹر فار ایکسیلنس فریم ورک سے ہم آہنگ تربیتی نظام اور جدید ووکیشنل اداروں کے ذریعے آئندہ 3 سال میں 1,62,000 سے زائد اضافی افراد کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ اسی طرح اسکلز فار گلوبل نیڈز کے لیے 51 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت پرواز کارڈ تعمیرات، صحت اور آٹومیٹو سمیت 12 بین الاقوامی معیار کے پروگراموں کے ذریعے 2,40,000 افراد کو عالمی منڈیوں کے تقاضوں کے مطابق تربیت دی جائے گی، جس سے سالانہ ترسیلات زر میں $468 ملین اضافے کی توقع ہے۔ ٹیکنالوجی اور جدت کے فروغ کے لیے فرنٹیئر ٹیک اسکل انوویٹو پنجاب کے تحت 12 ارب 30 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے جدید LMS پلیٹ فارم، انکیوبیٹرز، ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت 60 لاکھ تربیت یافتہ افراد، 15 لاکھ فرنٹیئر ٹیک گریجویٹس اور 1,200 سٹارٹ اپس کی معاونت کی جائے گی، جبکہ خواتین کی شرکت کم از کم 40% رکھی جائے گی۔ مزید برآں ایکسلریٹ پنجاب اینڈ ٹیک اسکلز پروگرام کے لیے 19 ارب 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت بورڈ کمپسز، وزیر اعلیٰ IT انٹرنشپ پروگرام، میکر سپیس اور بین الاقوامی IT سرٹیفکیشنز کے ذریعے 70,500 سے زائد نوجوانوں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ ان کی متوقع ماہانہ آمدن 1 لاکھ سے 1,20,000 روپے تک پہنچانے میں مدد ملے گی۔ مزید برآں شاہدرہ لاہور میں سینٹر آف ایکسیلنس فار ایڈوانسڈ آٹوموٹیو ٹیکنالوجیز 99 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جائے گا۔ اس مرکز میں ہر سال 400 تربیت یافتہ افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت دی جائے گی۔ آئندہ مالی سال میں 7 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیراتی شعبے کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تیاری کی غرض سے منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔
جس کے تحت پنجاب بھر میں 67 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی اور آئندہ 3 برسوں میں 22,200 افراد کو بین الاقوامی معیار کی تربیت اور سرٹیفکیشن فراہم کی جائے گی۔ مزید برآں ہاسپٹیلٹی اور صحت کے شعبے میں تربیت فراہم کرنے کے لیے 3 ارب 96 کروڑ روپے کی لاگت سے 60 نئی لیبارٹریز قائم کی جائیں گی۔ اسی طرح چیف منسٹر یوتھ امپلائیبلٹی ان بی پی اوز پروگرام 3 ارب روپے کی لاگت سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت 5 سال کے دوران 25,000 نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی، جبکہ مالی سال 2026-27 میں 5,000 تربیت یافتگان کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، عوام کو پینے کے صاف پانی اور سینیٹیشن کی سہولیات کی فراہمی کے لیے مالی سال 2026-27 میں ترقی اور غیر ترقیاتی اخراجات کی مد میں مجموعی طور پر 507 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 187 ارب 10 کروڑ روپے ترقیاتی اخراجات کی مد میں ہیں، جن کے مثبت استعمال سے مضبوط بلدیاتی نظام، متوازن علاقائی ترقی اور پنجاب کے شہریوں اور دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 45 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب بھر کے 18 اضلاع میں صاف پانی پروگرام کے تحت صاف اور محفوظ پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ یہ منصوبہ آئندہ مالی سال میں 8 ارب روپے کی لاگت سے اگلے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس منصوبے کے تحت 5,600 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے، جس سے عوام کو پینے کا صاف پانی مہیا ہو سکے گا۔ پنجاب کے تمام پلانٹس کو ڈیجیٹلی جیو ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی سے متعلق عوام کی شکایات کے ازالے کے لیے 1336 ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن بھی قائم کی گئی ہے۔ پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن پروجیکٹ تقریباً 96 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب کے 16 اضلاع کے تقریباً 2,000 دیہات میں جاری ہے۔ ان منصوبوں کے علاوہ آئندہ مالی سال میں رورل سینیٹیشن پروگرام کا 300 ارب روپے کی لاگت سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم اقدام چیف منسٹر واٹسن پروگرام کا ہے، جو 4 ارب روپے کی لاگت سے متعارف کرایا جائے گا، جس کا مقصد عوام کو پانی کی فراہمی اور صفائی ستھرائی کی بہتر سہولیات مہیا کرنا ہے۔ 137 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام پر عمل درآمد تیزی سے جاری ہے، تاکہ شہری انفراسٹرکچر، بنیادی سہولیات اور بلدیاتی خدمات کی فراہمی کو مزید بہتر بنایا جا سکے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب 60 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صوبے میں سیوریج، اسٹارم واٹر ڈریننگ سسٹم، گلیوں کی پختگی اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 505 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کا مالی سال 2025-26 میں آغاز کیا گیا۔ اس پروگرام کے پایہ تکمیل تک پہنچنے پر صوبے کے 66 بڑے شہروں کے عوام اس کے ثمرات سے مستفید ہوں گے، جبکہ آئندہ مالی سال میں اس منصوبے کے لیے 31 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ 59 ارب روپے کی لاگت سے مثالی گاؤں پروگرام کے ذریعے پنجاب کے 10 ڈویژنز میں 485 دیہات کو جدید بنیادی سہولیات سے آراستہ ماڈل دیہات میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال میں اس پروگرام کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ شہری سہولیات کی بہتری کے لیے 10 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے مری ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔
علاوہ ازیں 270 ارب روپے کی فراہمی سے صوبے بھر میں ستھرا پنجاب پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا، جس کے تحت صوبہ بھر کی 12 کروڑ عوام کو بہتر صفائی ستھرائی کی سہولیات فراہم ہوں گی اور ماحول کو مزید صاف اور صحت بخش بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کے لیے آئندہ مالی سال میں بھی 170 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ستھرا پنجاب بھی ہماری حکومت کے ان عوام دوست منصوبوں میں سے ایک ہے، جس کو متعدد بین الاقوامی فورمز پر پذیرائی ملی۔ اس منصوبے کو COP 30 جیسے بین الاقوامی اجلاس میں پیش کیا گیا۔ بلومبرگ علاوہ ازیں اہم ترین بین الاقوامی اخباروں اور نیوز چینل جیسے کہ بلومبرگ، BBC اس پروگرام کی افادیت کو تسلیم کیا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت 2 لاکھ سے زائد نوکریاں دی گئیں۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار کوڑا کرکٹ کے استعمال سے فائدہ اٹھانے کے لیے ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سارے پروگرام کو AI اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے جدید خطور پر استوار کیا جا رہا ہے۔ ان سارے اقدامات کی وجہ سے حالیہ عید کے موقع پر صفائی میں بہتری اس پروگرام کی کامیابی کا مظہر ہے، جس کے لیے تمام صفائی کا عملہ ستائش کے لائق ہے۔ بے گھر اور کم آمدنی والے خاندانوں کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1,73,000 ہاؤسنگ قرضے جاری کیے گئے ہیں، جبکہ اس مقصد کے حصول کے لیے 255 ارب روپے صرف ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 1,01,000 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے ہیں، جبکہ 32,000 سے زائد گھر زیر تعمیر ہیں۔ اگلے مالی سال کے دوران اس پروگرام کے تحت 2 لاکھ افراد کو 300 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کا منصوبہ ہے۔ یہاں میں اس امر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت کے اس ویژنری پروگرام کو نہ صرف پاکستان بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی پذیرائی ملی ہے۔ حال ہی میں باکو میں منعقد ورلڈ اربن فورم کے اجلاس میں اس پروگرام کو سراہا گیا، جو کہ ہماری حکومت کے لیے باعث فخر ہے۔ وسائل کی عوام الناس پر ساری کھپت ہوگی، یہاں سود و زیاں شفاف ہوگا اور بچت ہوگی۔ ہر ایک مزدور کو اجرت ملے گی وقت پر اب ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی۔ ہر ایک بے گھر کو گھر مل جائے گا، ہر سر پر چھت ہوگی۔ اسی طرح اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت زمین کی فراہمی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 1 ارب 47 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں، جس کے تحت اب تک 2,000 خاندانوں کو بلا معاوضہ پلاٹس فراہم کیے گئے۔ علاوہ ازیں 5 ارب روپے کی لاگت سے CM سسٹینیبل گولز پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ پائیدار ترقی کے اہداف اور عوامی فلاح کے منصوبوں کو مزید تقویت دی جا سکے۔ 62 ارب روپے کی مجموعی لاگت سے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپروومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام کے تحت پنجاب کے 10 درمیانے درجے کے اضلاع میں پانی کی فراہمی، سیوریج، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر شہری خدمات کے منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔ 64 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے ڈیولپنگ ریزیلینٹ انوائرمنٹ اینڈ ایڈوانسنگ میونسپل سروسز منصوبہ راولپنڈی اور بہاولپور میں کامیابی سے جاری ہے۔ پنجاب بھر میں پارکس کے قیام، بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے
2 अरब रुपए की लागत से खुसूसी प्रोग्राम मुतारिफ कराया जा रहा है। हुकूमत पंजाब पायदार जनाब स्पीकर, हुकूमत पंजाब पायदार शहरी तरक्की और जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़रोग को खुसूसी अहमियत दे रही है। इसी मकसद के तहत माली साल 2025-26 में पंजाब में सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए 290 अरब रुपए की मजमूई लागत से मुतअद्दिद मंसूबों पर अमल दरामद जारी है, जिनमें सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल प्रोग्राम, रावलपिंडी रिंग रोड, रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम, रोड्स रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम फेज़ 2, कायदे आज़म इंटरचेंज था वाघा बॉर्डर रोड, मुल्तान विहाड़ी रोड, फैसलाबाद चनियोट रोड और रावलपिंडी के कचहरी चौक और फैसलाबाद चनियोट रोड की अपग्रेडेशन शामिल है। मज़ीद ये कि सड़कें जो पिछले माली साल में शुरू की गईं, इनकी तकमील के लिए 36 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ भी इसी बजट में शामिल है। इसी अहमियत के पेश नज़र पंजाब भर में सड़कों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए 100 अरब रुपए की लागत से CM इनिशिएटिव फॉर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ अजला में सड़कों की तामीर, बहाली और अपग्रेडेशन के काम अंजाम दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, बढ़ते हुए आबी चैलेंजेस के पेश नज़र नहरी निज़ाम की बेहतरी, पानी के ज़िया में कमी और आपाशी के ढांचे की मजबूती हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इसी मकसद के तहत माली साल 2026-27 में तरक्याती अखराजात की मद में 30 अरब और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 31 अरब 14 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चंद अहम मनसूबों की तफसील कुछ यूँ है। रवां माली साल में आबी वसाइल, आबपाशी और सैलाबी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 95 अरब रुपए की मजमूई लागत से जलालपुर इरीगेशन प्रोजेक्ट, नौराजा भुट्टा फ्लड प्रोटेक्शन बंद, जलालपुर पीरवाला फ्लड प्रोटेक्शन बंद, सोरा डैम, तमान डैम, ढोचा डैम और रहीम यार खान में वाटर लॉगिंग के खात्मे के मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज़ किया गया, जिससे 3 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई अराज़ी महफूज और काबिल काश बनाई जा सकेगी। जबकि आइंदा माली साल में 47 अरब रुपए की लागत से लिंक कैनाल्स की बेहतरी और बहाली, 8 अरब रुपए के अम्ब्रेला कैनाल लाइनिंग प्रोजेक्ट फेज़ 2 के तहत 500 किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइंस की लाइनिंग, 110 अरब रुपए के पोठोहार स्मॉल डैम्स के प्रोग्राम के जरिए 1 लाख एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश और 75,000 एकड़ अराजी को काबिल काश बनाने के इक़दामात इस बजट का हिस्सा हैं। मज़ीद बरां 12 अरब रुपए की लागत से लिंक BRBD की बहाली और नए रावी साइफन की तामीर के ज़रिए पानी की दस्तयाबी और माहौलियाती बेहतरी को यकीनी बनाया जाएगा। फ्लड रेजिलियंस प्रोग्राम के तहत 51 स्कीमों को 56 अरब रुपए की लागत से माली साल 2026-27 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किया गया है। जनाब स्पीकर, 2025-26 का सैलाब सिर्फ कुदरती आफत नहीं था, बल्कि एक सबक आमोज वाक़या था, जिसने हमें मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए बेहतर तैयारी की ज़रूरत का एहसास दिलाया। हुकूमत ने जहां लोगों को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के तहत मदद फराहम की, वहीं डाटा पर मबनी फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मुस्तकिल हिफाजती इक़दामात पर भी सरमायाकारी की गई। इस टेक्नोलॉजी के बाद हुकूमत पंजाब ने मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीक़ों से तमाम नहरों, आपाशी के निज़ामों और दीगर आबी ज़राए की मुकम्मल मैपिंग की, ताकि आइंदा हर सैलाब से पहले मौसर
तैयारी की जा सके। कुदरती आफात से निपटने और हंगामी रद्द अमल को इस्तेदाद में इजाफे के लिए 1 अरब 35 करोड़ रुपए की लागत से 1122 रेस्क्यू को जदीद फीडर रेस्क्यू मशीनरी फराम की गई, जबकि माली साल 2025-26 के दौरान जिले इंतजामिया को 4 अरब रुपए और पीडीएमए को 63 करोड़ रुपए के रिलीफ फंड जारी किए गए ताकि सैलाब और दीगर हंगामी हालात में बरवक्त और मौसर इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जा सकें। इसके अलावा 7 अरब रुपए की लागत से माली साल 2026-27 में पंजाब में वेयर हाउस सहूलियात से आरास्ता रीजनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि 49 अरब 10 करोड़ रुपए की लागत से ढोढाचा डैम रावलपिंडी पर सतही पानी की सफाई और फराहमी आब का मंसूबा भी मुतारिफ कराया जा रहा है। ड्रेन रिहेबिलिटेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन पंजाब 10 अरब रुपए की लागत से तजवीज़ किया गया है। जनाब स्पीकर, महकमा तवानाई के लिए आइंदा माली साल में तरक्याती अखराजात की मद में 4 अरब 30 करोड़ रुपए और गैर तरक्याती अखराजात की मद में 1 अरब 43 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तवानाई के मौसर इस्तेमाल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के पेश नज़र इस शोबे में मुतअद्दिद अहम इक़दामात तजवीज़ किए जा रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई के मौसर इस्तेमाल के लिए 12 अरब 86 करोड़ रुपए की लागत से रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट सेक्टर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है। 9 अरब 97 करोड़ रुपए से सीएम फ्री सोलर पैनल स्कीम के तहत 90,000 घरानों को सोलर सिस्टम्स फराहम किए गए हैं। इस मकसद के लिए आइंदा माली साल में 90 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 8 अरब 50 करोड़ रुपए के एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के जरिए 38 वासा साइट्स और 51 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में 30 मेगावाट के सोलर सिस्टम नस्ब किए गए। आइंदा माली साल में एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड की आगाही, पंजाब अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी लैब के क़याम की तजवीज़, इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन थ्रू इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे जदीद सनती हल भी तकरीबन 12 अरब रुपए की मजमूई लागत से इस बजट का हिस्सा हैं। 8 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा जारी है, जिसके लिए रवां माली साल में 1 अरब 20 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं, जबकि मरी में 3 अरब 92 करोड़ रुपए की लागत से बांसरा गली ज़ूलॉजिकल गार्डन के मंसूबे पर अमल जारी है। आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 60 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। सफारी ज़ू लाहौर के मास्टर प्लान पर 7 अरब रुपए की लागत से अमल दरामद जारी है। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती आगाही, इको टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए 12 अरब रुपए की लागत से रावलपिंडी में भेर लोई ज़ूलॉजिकल गार्डन का क़याम, जबकि 2 अरब 50 करोड़ रुपए से जल्लो बर्ड पार्क एक्सपीरियंस जोन एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मुतलका सहूलियात में इजाफा किया जाएगा। ये इक़दाम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, अवामी आगाही और माहौल दोस्त सियाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेंगे। थक गए आप?
कोई पता चले यार ऑपोजिशन। हाँ, फिर मुझे मजा आता है फिर तकरीर करने का। कोई नहीं स्पीकर साहब, हमारे भाई हैं, आप अपनी चलता है होता है। जनाब स्पीकर, अवाम से वादों की तकमील के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में माली साल 2025-26 के दौरान सोशल स्पेंडिंग की मद में 361 अरब रुपए खर्च किए गए। ये अमर भी तारीखी है कि माली साल 2025-26 में 20 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री अथॉरिटी मुकम्मल की गई, जिसके तहत 11 करोड़ से ज़ायद अफराद का समाजी और माशी डेटा जमा किया गया ताकि हुकूमती फलाई प्रोग्रामों को मौसर हदफ बंदी और शफाफ फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसी तनाजुर में हुकूमत PSER को अथॉरिटी में तब्दील करने जा रही है। इसके साथ ही PSER की तोसी के लिए माली साल 2026-27 में 2 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तंजीम नौ और इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं ताकि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों की मौसर निगरानी हो सके। जनाब स्पीकर, मजीद बरां रमजान निगहबान पैकेज के तहत रमजान 2026 में 39 अरब रुपए की लागत से तकरीबन 34 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की गई। अगले साल इस पैकेज के लिए 37 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के तहत 24 अरब 87 करोड़ खर्च किए गए ताकि सनती कारकुनों और कम आमदन वाले 12 लाख खानदानों की बुनियादी जरूरियात के हसूल में मुआवनत फराहम की गई, जबकि माली साल 2026-27 के लिए 40 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। रवा साल के अहम मंसूबों में एक मंसूबा हिम्मत कार्ड प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके तहत खसूसी अफराद की मुआवनत के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिससे 1 लाख अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाइफ स्टॉक के शोबा में 3 अरब रुपए की लागत से लाइफ स्टॉक कार्ड प्रोग्राम के जरिए 29,265 मवेशी पाल हजरात को माली मुआवनत फराहम की गई, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 4 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बरां धीरानी प्रोग्राम के तहत 5,000 मुस्तहिक बेटियों की इज्तिमाई शादियों के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि आइंदा माली साल में इस मंसूबे के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए तजवीज़ किए गए हैं। खुसूसी अफराद के लिए मसनूई अज़ा, समाती आलात और दीगर मावन सहूलियात की फराहमी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से 18,803 मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हुए। आइंदा माली साल में इस प्रोग्राम के लिए 3 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिससे 40,000 अफराद मुस्तफीद होंगे, जबकि पंजाब के मुतअद्दिद अजला में ओल्ड एज होम्स आफियत के लिए भी 2 अरब 6 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। 1 अरब रुपए की लागत से मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत माली साल 2025-26 में 13,757 शहरियों को माली। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।